السلام علیکم، سچ نیوز پر علاقائی خبرنامے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ پنجاب میں شہر شہر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور کے جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ زلجنہ کے جلوسوں میں عزاداری اور نوحہ خوانی جاری ہے۔ کربلا کے دشت میں دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کی شہر شہر قریہ قریہ یادیں تازہ ہو گئیں۔ عزاداران امام حسین کی جانب سے دیگر صوبوں کی طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کمالیہ میں یوم عاشور کے 21 جلوس اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ تمام جلوس مرکزی امام بارگاہ ایوان حسین سے برآمد ہو کر مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ عارف والا، صادق آباد، بہاڑی، گجرانوالہ اور اکاڑہ میں بھی عاشقان حسین عزاداری کر رہے ہیں۔ قریہ قریہ لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ میاں والی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس زلجنہ وادی اسلام سے برآمد ہو کر اپنی منزل امام بارگاہ قصر بطول کی جانب رواں دواں ہے۔ ضلع بھر میں 70 جلوس برآمد ہوئے۔ میاں چنو میں 10 محرم الحرام کے جلوس میں شہدائے کربلا کی یاد میں جھولا علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوا۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا میاں منو پہنچ کر مکمل ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ مشروبات اور ٹھنڈے پانی کی سبیلوں سمیت لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دین اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تاندلیاں والا، کہروڑ پکا، منڈی بہاؤالدین اور پھالیا میں بھی عزاداری اور ماتمی جلوس رواں دواں ہے۔ چنیوٹ سمیت ضلع بھر میں 92 جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے منزل کی جانب گامزن ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، حافظ آباد، جلال پور بھٹیاں، جہانیاں، پیر محل، خانیوال اور ٹھل حمزہ سمیت پنجاب بھر میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ آزاد کشمیر کی فضا بھی آج حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی کے لال کے غم میں سوگوار ہے۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نواسہ رسول کی یاد میں مجالس عزا اور جلوس برپا ہیں۔ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ آزاد کشمیر کے کونے کونے سے بھی مارکہ کربلا اور تا قیامت حق اور باطل میں فرق کرنے والے امام عالی مقام اور ان کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے ان کے پیاروں اور ساتھیوں کو انتہائی عقیدت سے پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فلک بوز پہاڑوں کی وادی گلگت بلتستان میں بھی حضرت امام حسین کے چاہنے والے گھر گھر گلی گلی قریہ قریہ غم حسین منا رہے ہیں۔ امامیہ مسجد آغا سید ضیاء الدین رضوی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے اور اسی مقام پر مکمل ہوگا۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی یوم عاشور کی مناسبت سے مجالس اور جلوس نکالے گئے۔ رپورٹ کریں گے عامر علی سید۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی یوم عاشور روایتی اور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ جلوس کا آغاز مرکزی امام بارگاہ حیدری چوک سے ہوا، جس میں شہر کے قرب و جوار سے تمام چھوٹے بڑے جلوس اس میں شامل ہوئے۔ مرکزی جلوس ہر سال کی طرح اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حیدری چوک میں موجود ہے، جہاں علماء کرام اور ذاکرین شان امام حسین بیان کر رہے ہیں۔ آج کا دن جو ہے تو وہ نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے بہت اہم دن ہے، اور یہ شہادت جو ہے تو وہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، جذبہ دیتی ہے انسانیت کا، امن کا، بھائی چارے کا۔ اور جس طرح امام حسین علیہ السلام جو ہے تو انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا بلکہ ڈٹ گئے اور یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ سارا خاندان کٹوا دیا۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین میرا حسین۔ آج کا دن ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو کربلا میں امام حسین نے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے دی۔ اس موقع پر عزاداروں کی ایک خاصی بڑی تعداد موجود ہے اور آج کے دن کی اختتامی دعا ہر سال کی طرح امام بارگاہ بگرول میں ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر علی سید، سچ ٹی وی، باغ، آزاد کشمیر۔ یوم عاشورہ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ عباس پور میں بھی یوم عاشور کا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قدیمی ماں بارگاہ تتری نوٹ میں اختتام پذیر ہوا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مبشر نقوی۔
یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ عزاداران امام علی مقام امام حسین کو پرسہ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے عباس پور میں بھی ایک جلوس نکالا گیا۔ عباس پور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ تیتری نوٹ میں ہوا۔ مسجد نے اپنی خدمات بخوبی سر انجام دی۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ تیتری نوٹ میں اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین راجہ اکرام ریاست کیانی کے ساتھ بشر نقوی، سچ ٹی وی، عباس پور، آزاد کشمیر۔ یوم عاشور کی مناسبت سے تعزیہ اور زلجنہ کا جلوس قدیمی امام بارگاہ حسینیہ سادات گردیزی پرانا ڈسکہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں نے 72 شہداء کو پرسہ پیش کیا۔ رپورٹ کریں گے نوید اقبال۔ یوم عاشور محرم الحرام کے تعزیے اور ذوالجناح کا جلوس قدیمی امام بارگاہ حسینیہ سادات گردیزی سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر عزاداران نے 70 شہداء کو پرسہ پیش کیا۔ شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے محبت آل رسول میں گھر گھر نذرانہ اور گزرگاہوں پر لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ ماتمی جلوس اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا نسبت روڈ گورنمنٹ ہائی اسکول پہنچا، جہاں عزاداران نے نماز ظہرین ادا کی۔ بعد میں میلاد چوک میں علماء اکرام اور ذاکرین نے گھرانہ نبوت کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں پر جامع روشنی ڈالی۔ جلوس ابھی اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا نماز مغرب کے بعد دوبارہ مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا۔ چکوال میں یوم عاشور کے سلسلے میں 70 مجالس اور 70 جلوس برآمد ہوئے۔ علماء و ذاکرین نے شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کی، جبکہ عزاداروں نے ماتمداری اور نوحہ خانوں سے نوحہ خانی کر کے شہداء کربلا کو پرسہ پیش کیا۔ امام بارگاہ گلستان زہرا چکوال میں یوم عاشور کی مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے ذاکر امیر الحسن کاظمی، ذاکر وسیم عباس بلوچ نے فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے جانثار ساتھیوں سمیت وہ عظیم قربانی دی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت قبول نہ کی اور دین اسلام کی خاطر اپنا سر قلم کروا دیا۔ واقع کربلا میں ننھے بچوں، جوانوں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے دین کی خاطر اپنی قربانیاں دی، جس نے ہمیں حق کو باطل کی پہچان کروائی۔ مجلس کے اختتام پر ذاکر وسیم عباس بلوچ نے شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کی، جس پر عزاداروں نے گریہ کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کیا۔ ان مجالس کا اہتمام متولد چودھری اظہر عباس نے کیا، جبکہ یوم عاشور شبیہ علم تعزیہ و ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سرپاک سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے وقت مرکزی امام بارگاہ سرپاک میں اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جلوس میں عزاداروں نے ماتمداری کر کے اور نوحہ خانوں نے نوحہ خوانی کر کے شہداء کربلا کو پرسہ پیش کیا، جبکہ جلوس کے مختلف جگہوں پر لنگر اور سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا اور دربار سخی صاحب ثبوت پر مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس سے علماء و ذاکرین نے فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام بیان کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجب ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال۔ نورپور تھل میں یوم عاشورہ کے مرکزی جلوس برآمد ہوئے۔ عزاداران حسین کے لیے جگہ جگہ نذر و نیاز اور سبیلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عبدالحمید چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ 10 محرم الحرام کے سلسلہ میں نورپور تھل میں جلوس، مجالس اور نذر و نیاز اور سبیلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 10 محرم الحرام حضرت امام حسین کی لازوال قربانیوں کی اعلیٰ مثال ہے۔ جلوس میں جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ حضرت امام حسین شجاعت اور بہادری کی اعلیٰ مثال تھے، جنہوں نے کربلا کے مقام پر عظیم قربانی دی۔ دن کے لیے جناب علی اصغر کی پیاس کے صدقے جگہ جگہ پہ سبیل کا بندوبست کیا گیا ہے، جو کہ تمام انسانوں کے لیے، اس میں کسی خاص فقہ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہر انسان سبیل علی اصغر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گرو نانک نے فرمایا تھا اپنے مریدین کو کہ جاؤ 10ویں کے دن حضرت امام حسین کی سبیل سے مجھے پانی پلاؤ۔ ہر انسان کو اس ایام میں دکھ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے طریقے سے اسے مناتا ہے۔ اس محرم الحرام کو نورپور تھل میں موبائل اور انٹرنیٹ کی صورت معطل ہے۔ عزاداری، نذر و نیاز، شہید کربلا کو پرسہ دیا جا رہا ہے۔ نورپور تھل میں محرم الحرام شروع ہوتے ہی حضرت امام حسین سے عقیدت احترام کا سلسلہ جاری ہے، تو اس سلسلے میں نذر و نیاز اور حضرت امام حسین کو پرسہ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیمرہ مین رانا ثناء اللہ کے ساتھ عبدالحمید چودھری، سچ نیوز، نورپور تھل۔ امام بارگاہ زینبیہ میں عزاداروں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد زیارات کرنے پہنچ گئی۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے اپنی مرادیں پوری کر کے جاتا ہے۔ رپورٹ کریں گے راشد حسین۔ امام بارگاہ زینبیہ میں زیارات کا سلسلہ جاری ہے، جہاں عزادار اور عقیدت مند اپنی اپنی مرادوں کے لیے زیارات کرتے اور منتیں مانگتے ہیں۔ عقیدت مند مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک جناب غازی عباس کا علم اور دیگر شبیہات کی زیارات کرتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ صدقہ محمد و آل محمد کا پروردگار ان زیارات پر ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا
परवरदिगार हमारी ये दुआएं कबूल करता है। इधर ज़ियारत के लिए मुल्तान से, लाहौर से इधर बंदे आते हैं ज़ियारत के लिए। ये मरतजी मौला जाजी आबाद की भी ज़ियारत पड़ी है, मौला हुसैन की भी, मौला अली की भी और बीबी मासूमा चुमची भी है, बीबी फातिमा तुलजादा से भी ज़ियारतें पड़ी हैं, मौला अली की भी हैं। अकीदतमंद और आज़ादार जहां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दीन के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानी पर उन्हें पुरसा पेश करते हैं, वहीं इमाम बारगाह ज़ैनबिया में मौजूद इन ज़ियारात पर अपनी मनते मुरादें भी मांगते हैं। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। जिला भक्कर में यौम आशूर की मुनासबत से 140 मजालिस, अलम और जुलजना के 95 छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास। जिला भक्कर में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिला भर में 140 मजालिस, अलम, ताजिया और जुलजना के 95 छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। यौम आशूरा का मरकजी जुलूस सुबह 10:30 बजे थल्ला मुरीद मेहदी से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों कसरे ज़ैनब, इमाम बारगाह दर अब्बास से होता हुआ इमाम बारगाह करबला पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा, जहां पर शाम गरीबा की मजालिस बरपा होंगी। जुलूस से कबल ज़ाकिरीन उज़ाम ने फलसफा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली, जबकि जुलूस में शामिल हजारों अज़ादारों ने मातमदारी और नुआ खानी करके इमाम आली मकाम से अपना इजहार अकीदत किया। नुआ खान हजरात बड़ी अकीदत और एहतराम से नुआ खानी कर रहे हैं। जुलूस के हमरा पानी, दूध और शरबत की सबीलों का भी एहतमाम किया गया है, जबकि TMA, वापडा, महकमा सेहत, रेस्क्यू 1112, मेंबरान अमन कमेटी और तमाम मुतलका महकमों के अफराद भी से निपटने के लिए जुलूस के साथ तैनात हैं। कैमरामैन सिमला शाकरी के साथ नासिर वास बलोच, सच TV भक्कर। शहदाई करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर की तरह रुझान में भी मजालिस और शबी और जुलजना के जुलूस बरामद हुए। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहदाई करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर की तरह रुझान में भी मजालिस और शबी और जुलजना के जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी है। अज़ादार नुआ खानी मातम ने अकीदत का इजहार कर रहे हैं। हम जो दिली मुरादें मांगते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो हमारे पूरे हो जाते हैं। औलाद के लिए जो भी मुश्किलात होते हैं, हमारा ये जो है ना बाबुल हवाज हज़रत अब्बास अलमदार, ये शक्का सकीना कमर बनी हाशिम है, इसे शिबाब हुसैन कहते हैं, इसे हिजाब बीबी ज़ैनब कहते हैं। ये हमारा मुश्किलों के लिए ये मुश्किल कुशा है। हुसैन में मजलिस का भी एहतमाम करते हुए वाक़या करबला को शहदाई खराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद जुलजना और ताज़िया के जुलूस निकाले गए, जिनमें सैकड़ों अज़ादार शरीक किया जाएगा सईद अहमद मरहूम के घर से। उसके बाद पंघूड़ा बरामद किया जाएगा अली असगर। उसके बाद जुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद हुसैन के घर से बरामद किया जाएगा। शहर भर में दूध, शरबत और पानी की सबीलें लगाई गई हैं। कैमरामैन मलिक उज़ैर अहमद के साथ मलिक तुफैल, सच न्यूज़, रुझान। मैदान करबला में शहदाई करबला की अजीम कुर्बानी की याद में लोधरा समेत जिला भर में मजालिस अज़ा बर्पा की गई। शहदाई करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मातमी जुलूस भी निकाले गए। काजिम अब्बास की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह जिला लोधरा में भी यौम अशूरा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैदान करबला में शोहदा करबला की अजीम कुर्बानी की याद में जिला भर में मजालिस अज़ा का इनकाद किया जा रहा है और शोहदा करबला को पुरसा और खराज अकीदत पेश करने के लिए मातमी जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। अज़ादारान शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए नुआख्वानी मातमदारी करते हुए मंजिल की जानब रवा दवा है, जो मगरिबैन के वक्त इख्तिताम पजीर होंगे। शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास की याद में सबीलों का भी एहतमाम किया गया है और रेस्क्यू 1112 का अमला भी मातमी जुलूसों के साथ साथ ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम दे रहा है। वापटा PTCL और म्युनिसिपल कमेटी का अमला भी मातमी जुलूसों के हमरा ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम दे रहा है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, लोधरा। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यौम आशूर पर सिंध भर के छोटे बड़े शहरों से जुलूस अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामजन हैं। यौम आशूर शहदाई करबला से तजदीद अहद वफा का दिन। हैदराबाद और नवाबशाह के मरकजी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने नवासा रसूल को पुरसा पेश किया। जुलूस में शबी ताबूत, शबी जुलजना, शबी अलम समेत दीगर तबरुकात शामिल थीं। सिंध भर में मरकजी जुलूस के अलावा मजालिस और छोटे बड़े जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए मुकम्मल हुए। दादू में यौम आशूर का मरकजी जुलूस हैदरी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कचहरी रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में हजारों अज़ादारों ने शिरकत की। फजाएं लब्बाइक या हुसैन की सदा से गूंज उठी। रोहड़ी के कदीमी जुलूस में शहर के छोटे बड़े जुलूस शामिल हुए। जुलूस के शुरका नुहखानी और मातमदारी करके नवासा रसूल का पुरसा पेश कर रहे हैं। सिंध के शहर हाला, भिड़शाह, मटियारी और सईदाबाद में 170 जुलूस निकाले गए। भिड़शाह में यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला मौला इमाम बारगाह से बरामद होकर इख्तिताम पजीर हुआ।
खानपुर महर में करबला के शहीदों की याद में बरामद मातमी जुलूस इख्तिताम को पहुंचा। जुलूस के रास्तों पर सबीलों और न्याज का एहतमाम किया गया। बनु आकिल की इमाम बारगाह से बरामद मातमी जुलूस जबकि गोटकी समेत जिला भर से 81 छोटे बड़े मातमी जुलूस इख्तिताम पसीर हो गए। कंदकोट में यौम आशूर के जुलूस में अज़ादारान हुसैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मातमी जुलूस घंटाघर से होता हुआ इमाम बारगाह गुलाम शाह बादशाह पर मुकम्मल हुआ। कमालिया में माजूर अज़ादार 12 साल से हर यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खराज अक़ीदत के लिए ठंडे दूध और चाय की सबील लगाता है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया हाजी चौक का रिहायशी गोगा जो कि अरसे 12 साल से हर मुहर्रमुल हराम में ज़ाहिरीन के लिए यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक ठंडे दूध, पानी और चाय की सबील का इंतजाम करता है। गोगा माजूर होने के बावजूद अपनी मदद आपके तहत ये इंतजाम करता है और अज़ादारों और मोमनों को बड़ी मोहब्बत और अकीदत से पेश करता है और दिली खुशी महसूस करता है। गोगा का कहना था, मैं ये सबील लगा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये लगाता रहूँगा। तकरीबन 15 साल हो गए मुझे ये सबील लगाते हुए। दूध, जामे शीरी, चाय, बिस्किट, जूस, जो भी लंगर इधर आता है मैं वो यहाँ तकसीम करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी है इमाम हुसैन की राह में ये मैं सबील लगाता रहूँगा। वो माजूर है तो क्या है, दिल में इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम तो है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों से आज ये दीन हमें मिला। हजरत इमाम हुसैन और उनका कबीला खुद प्यासा और भूखा रहा लेकिन दीन पर आंच तक न आने दी। करबला की कुर्बानी तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमें अकीदत, सब्र और भाईचारे का दर्स देती है। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अपने रब की रजा के साथ अपने नाने के दीन की हिफाजत की और उनकी ये कुर्बानी क़यामत तक हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टिब्बा सुल्तानपुर में यौम आशूरा इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर में झंडी से तैयार किए गए रिवायती ताजिए 8 मकामात से बरामद हुए। रिपोर्ट करेंगे चौधरी कासिम। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टिब्बा सुल्तानपुर में यौम आशूरा इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस पुरानी तहसील रियाज हुसैन शाह की रिहायशगाह और दूसरा मातमी जुलूस खूह वली वाला से मजहर अब्बास शाह की रिहायशगाह से बरामद किया गया, जिसमें अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस में मुख्तलिफ उलमाए किराम और ज़ाकिरीन ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को बयान किया। बाद में जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे ज़हरा और रियाज शाह मरहूम की रिहायशगाह से बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ब्लॉक नंबर 9 में इख्तिताम पजीर हो गया। शहर में 8 मकामात से झंडी से तैयार किए गए रवायती ताज़िए भी बरामद किए गए, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए कब्रिस्तान में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए। शहर में जगह जगह मीठे पानी, दूध की सबीलों के साथ लंगर हुसैनी की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन चौधरी हमाद मुनव्वर के साथ चौधरी काजिम सत्तार कंबोज, सच न्यूज़, टिब्बा सुल्तानपुर। बहावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में मरकजी कदीमी अलम पाक का जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ उच्च मोगला में इख्तिताम पसीर हो गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ताहिर। शरीफ में मुहर्रमुल हराम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी और कदीमी अलम पाक का मिलनी का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह मौला खाजगन पुरानी बाजार से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ उच्च मुगला सैयद काशिफ रजा के आस्थाने पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की क़ियादत मखदूम सैयद जमुर हुसैन बुखारी ने की। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के रास्तों में अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मीठे पानी की सबीलें और लंगर का भी एहतमाम किया गया। जुलूस में मोमिनीन नुवाखानी और मातमदारी करते रहे। जुलूस में बच्चे और माजूर अफराद ने भी अज़ादारी मनाते दिखाई दिया। कैमरामैन इजाज़ हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़ और शरीफ। सराय सिद्धू में 10 मुहर्रमुल हराम के मुनासबत से मरकजी मातमी जुलूस बस्ती दरखाना वाली से बरामद हुआ। अज़ादारों की बड़ी तादाद, लोगों की बड़ी तादाद ताजियों के जुलूसों के हमरा मौजूद थी। सैयद अली रेज़ा नकवी की रिपोर्ट देखिए। सिद्धू के नवाही इलाका बस्ती दरखाना वाली से 10 मुहर्रमुल हराम शहादत अली अकबर अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मरकजी मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के रास्ते में जगह जगह करबला के प्यासों की याद में सबील मौला अली असगर अलैहिस्सलाम लगाई गई। जुलूस में बच्चों बूढ़ों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जुलूस में मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत को खराज अकीदत पेश करने के लिए नोहे पड़े गए। अज़ादारों ने अलम अब्बास अलमदार उठा रखे थे। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बड़े सरगाना में इख्तिताम पजीर हुआ। 10 मुहर्रम वाले दिन सबसे पहले मैदान करबला में अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जंग में यजीदी फौज को फिन्नार किया और पहले शहादत का रुतबा पाया। सैयद शुहदा ने मैदान करबला में अजीम कुर्बानियां देकर इस्लाम और हक सच का परचम बुलंद किया। मुहर्रमुल हराम हमें भाईचारे, सब्र और तअम्मुल का दर्स देता है। मुहर्रमुल हराम का ये कदीमी जुलूस जो कि बड़े बस्ती वाली से बरामद होता है और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बड़े सरगाना पर 4 बजे इख्तिताम पजीर होगा। मुहर्रमुल हराम का एहतराम तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमारे लिए मुश्किल राह है।
कैमरा मैन हसन मादी के साथ सैयद अली रजा नकवी, सच न्यूज़, सराय सिद्धू। मुल्क भर की तरह ठुल हमजा में भी यौम आशूर का जुलूस ठुल हमजा के मोहल्ला नूर तफ्तानी से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मोहल्ला मुलाजिम शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ठुल हमजा के मोहल्ला नूर नुक्तानी से यौम आशूर का जुलूस बरामद हुआ। यौम आशूर के जुलूस में सैकड़ों आशिकान हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक। जुलूस में माजूर अफराद और छोटे छोटे बच्चे भी अलम हाथों में थामे जुलूस में शरीक रहे। जुलूस के रास्तों पर आशिकान हुसैन की जानिब से सबीलें भी लगाई गई थी। इस बारे माजूर मोमिन रियाज अहमद ने बताया कि वो एक माजूर शख्स है, लेकिन दिल में इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमें अकीदत, सब्र और भाईचारे का दर्स देती है। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अपने रब की रजा के साथ साथ अपने नाना के दीन की हिफाजत की। उनकी ये कुर्बानी क़यामत तक हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। यौम आशूर का जुलूस मोहल्ला मुलाजिम शाह में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। मखदूमपुर शरीफ मुरीद चकवाल में उर्स सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनाक़िद हुआ, जिसमें आने वालों ने अपने सरों पर खाकी रंग की टोपियां पहनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश किया। रिपोर्ट करेंगे राजा साक़िब। 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूर का दिन हर कोई अपने अंदाज में मनाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इसी तरह मखदूमपुर शरीफ मुरीद चकवाल में उर्स सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्किद होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं। उर्स में आने वाले अपने सरों पर खाकी रंग की टोपियां पहनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करते हैं। उर्स से खिताब करते हुए पीर महमूदुल हसन मस्तवार कलंदर ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से आज हमें इस्लाम मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर दीन पर कोई आँच आए तो हमें भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। सैयद मकसूद हमदानी ने कहा कि दीन की बका का नाम हुसैन है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत हैं। उससे दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और आखिर में पीर महमूदुल हसन मस्तवार कलंदर ने खुसूसी दुआ भी करवाई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बादल फिर बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मंगल तक मजीद बारिशें हो सकती हैं, जिससे बाज़ इलाकों को सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मंगल तक अंदरूनी सिंध के इलाकों ठट्ठा, बदीन, शहीद बेनजीराबाद, दादू, थरपारकर, नगर पारकर और मीरपुर खास समेत दीगर कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बाज़ इलाकों समेत बलूचिस्तान के अजला लसबेला, खुजदार, आवरान, बारखान, योब, मूसाखेल, लोरालाई, कोहलू और सिब्बी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास और बदीन में आज और कल मूसलाधार बारिश के बायस मजीद अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इसी दौरान सिब्बी, कल्लात, खुजदार, लसबेला और डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। दरियाए चनाब में चिनियोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलियार। जिला चिनियोट में भी सैलाबी सूरत पैदा हो गई है। जिला चिनियोट दरिया चनाब के मुकाम से 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से दरिया चनाब के किनारे 50 से ज्यादा आबादियों का शहरी इलाकों से राब्ता कट गया है। ठट्टा मुस्तफा, ठट्टा देवड़ा, मौजा दूसरी, द्रावड़, बुखारियां, कोट शाहबल, जुगियां, पठाना और बाबू राय समेत 50 से ज्यादा इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी पानी की वजह से फसलें मक्की, जवार, बाजरा, धान और कमान समेत चारा जात की फसलें पानी में डूब गई है। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट का कहना है की मुतलका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिला चिनियोट के अंदर इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस वक्त जिले के भर के अंदर कुल 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स स्टैब्लिश हो चुके हैं। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो दरिया के करीब आबाद हैं कि वो अपनी जान और माल को ख़तरे में ना डालें और हमारी इंसानिया की जो टीमें वहाँ पर मौजूद हैं मौके पे उनके साथ ताउन करें। ज़िलाई इंतजामिया की तरफ से 9 फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं, जबकि करीबी नशीबी इलाकों के मुकीन अपने जानवर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ दरमन कलियार, सच न्यूज़, चिनियोट। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से लालियां के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। कमाद, चावल, मकई और चारे की तैयार फसलें पानी पानी हो गईं, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे शकील अब्बास। हालिया बारिशों से दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से लालियां के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए।
दर्जनों देहात और आबादी में पानी दाखिल हो गया। मौजा, कलरी, अहमदवाला, मौजा तूतड़ी, जलालतुशा, यारेकी, रांदीकू और देगर देहाती आबादी में पानी दाखिल हो गया, जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कमार, चावल, मकई और चारे की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। ये जो करंट अभी हमारे सैलाब आया, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया इधर हमारे गाँव को। यहाँ पर अफराद मुतासर हुए हैं, वहाँ पर हमारे जो मवेशी वगैरह बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और इस हिसाब से जो प्रॉब्लम बना हुआ है, ये तकरीबन जो ये ज़्यादातर जो कल्टीवेशन लैंड थी वो ज़्यादा मुतासर हुई, जो मवेशियों के चारा वगैरह वो सब ख़त्म हो चुका है। अब ये हमारे जो माइग्रेशन कर रहे हैं, जो मवेशी इस मशरक़ी इलाके में जो दरिया के किनारे पे आते हैं, वो ज़्यादा मवेशी जो है इधर माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये तो सारा इलाका ख़त्म हो गया मवेशी का। अब अपील ये की जाती है कि कुछ न कुछ इमदाद की जाए और इस तरह कुछ इनको रिलीफ मिल जाए। दूसरी तरफ ज़िले इंतजामिया की तरफ से रेस्क्यू 112 ने भी फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए हैं, जिनसे पानी में फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि कई इलाकों तक अभी तक रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंच सकी, जिससे शहरी अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। हाल होने वाली बारिशों से जहाँ दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हुई, तो वहीं पर लालिया के भी कई देहात शदीद मुतासर हुए हैं। तो यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत अपने जानवर और माल मवेशी जो है वो निकाल रहे हैं। ताहाल इंतजामिया की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़, लालिया। ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की सड़कें ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सांगला इंतजामिया की नाहली के बाद सारा शहर पानी में डूब गया। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का करोड़ों रुपए मालियती कीमती सामान खराब हो गया। सांगला हालिया मूसलाधार बारिश होने से शहर के दाखिली खारजी रास्ते और अंदरूनी शहर गली मोहल्लों, मसाजिद, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पानी में डूबे हुए हैं। अगर बरवकत कार्रवाई न की गई तो किसी बड़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं। निकासी अब न होने की सूरत में और तहसील म्यूनसिपल कमेटी का बरवकत इंतजाम न करने की वजह से पूरा शहर दरिया का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का शदीद एहतजाज। पानी दूसरे रोज भी गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा है। तफसीलात के मुताबिक सांगला हिल की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंतजामिया नाहली के बायस सांगला हिल के बेशतर इलाके पानी में डूब गए और पानी दूसरे रोज तक भी ना निकाला जा सका। मजाफाती इलाकों में हालात इससे भी अबतर हैं और लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि हमारी आला हुक्मरानों से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। सांगला हिल में हालिया बारिशों की वजह से सरकारी बिल्डिंगें, मस्जिदें और बाजारों में गंदा पानी जमा हो गया। DMA के अमले की गफलत की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा, सच न्यूज़, सांगला हिल। मालकन में बदखेला रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क की तामीराती काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। इलाका मकीनों ने वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं आमिर अब्बास से। जी आमिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मालाकन के इलाके अलडन रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड अरसदराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबे में गुज़श्ता 5 सालों से हुकूमत है और मौजूदा 2 साल हुकूमत के रहने के बावजूद इस इलाके की आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। ये रोड दर्जनों गाँवों को बटखेला से मिलाती है। हज़ारों नपूस पर मुश्तमिल आबादी का हुकूमत से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनाकर आवाम की मुश्किलात में कमी की जाए। मालाकन के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम की मुश्किलात में कमी ना ला सकी। अवाम ने मौजूदा सूबाई हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान से पुरजोर मुतालबा किया है कि पूरी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने सड़कों की जाल बिछा रही है। पिशावर BRT मनसूबा मुकम्मल हो चुका है। बटखेला और इसके गिरदनवा के सड़कें मौजूदा हुकूमत की तवज्जो की मुंतजिर है। जी बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास आपका। दादू के इलाके काचू में सैलाब के बायस जमीनी रास्ते ताहाल बहाल नहीं हो सके। मैयत को दफनाने के लिए भी सैलाबी पानी से गुजरना पड़ा। मुंतखब नुमाइंदगान और इंतजामिया मंजर आम से गायब हैं। दादू में सैलाब की तबाहकारियां, काचू के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। बारिश तो थम गई मगर मसाइल जूं के तूं हैं। दादू के इलाके काचू में सैलाब के बायस ताहाल जमीनी रास्ता मुमकिन न हो सका। सैकड़ों देहातों का ताहाल जमीनी राब्ता शहर से भी मुनक़ते है। काचू के नवाही इलाके गोलो फकीर के रहायशी के इंतकाल पर वर्षा की जानब से इंतजामिया को आगाह करके कश्ती फराहम करने का मुतालबा किया गया, मगर इंतजामिया की बेहिसी की वजह से मैयत को कब्रिस्तान ले जाने तक भी कश्ती फराहम न की गई। रास्ता बहाल न होने की वजह से मैयत की तदफीन के लिए इलाका मकीनों को सैलाब के पानी से गुजरना पड़ा। 2 रोज कबल कुछ इस तरह के मनाजर देखने को मिले जब काचू में बच्चे के इंतकाल पर मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए वर्षा कश्ती फराहम करने के लिए दुआइयां देते रहे, मगर बेहिस इंतजामिया ने कश्तियों के लिए पेट्रोल न होने का जवाब बताकर कश्ती देने से इनकार कर दिया।
काछू के मकीन दौरे जदीद में भी पत्थर के दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब से हजारों खानदान मुतासर हुए, माल मवेशी सैलाब बहा कर ले गया। काछू के मकीनों की जिंदगी में तो मुश्किलात का सामना है, मगर अब तो मरने के बाद भी मैयत की तदफीन करना भी मुश्किल हो चुका। भारत आबी जारियत से बाज न आया। जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नाला एक शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। भारत अपनी आबी जारियत से बाज ही नहीं आ रहा, मुसलसल पानी नाला एक में छोड़ रहा है। डस्का की हदूद से गुजरने वाले नाला एक ने डस्का के देहातों में तबाही मचा दी। नाला एक में कोटली मरला के करीब शगाफ पड़ने और ओवरफ्लो होने से डस्का के मुतद्दिद देहात कोटली मरला, गंजियां वाली, काजी चक, डोगरावाला के मुतद्दिद छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी एरिया के मुतासरा देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। देहातों की आबादियों में पानी दाखिल होने से देहाती महसूर होकर रह गए। सैलाब से किसानों की धान, सब्जियों और चारे की फसलें तबाह हो चुकी। मवेशियों के लिए चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है। मुतासरा इलाकों में बिजली के कई पोल सैलाब की नजर होकर गिर गए, जिससे बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। देहातियों के घरों, डेरों, गलियों में कई फुट पानी जमा है। नाला एक ने डस्का के देहातों में तबाही मचा दी। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में भी हैदर कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। फालिया में हैदर कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 1,84,000 क्यूसिक और अखराज 1,75,000 क्यूसिक है। बिफरे पानी के बायस सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 11 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों की तरफ से इमदादी कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। और करबला के मैदान में जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफा जानिसारों ने दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी, वहीं जुलजना ने भी ऐसी वफा निभाई जिसे ता क़यामत याद रखा जाएगा। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। करबला के मैदान में इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजना ने वफा की ऐसी मिसाल कायम की जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, जिसने हक व बातिल की जंग में आखिरी वक्त तक अपने शाह सवार इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ ना छोड़ा। वाक़े करबला में जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार साथियों ने दीन इस्लाम की खातिर जाने दी, वहीं ये सवारी भी तारीख रकम कर गई। मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घोड़े की जीन से जमीन पर आए और हल में ना से यन सुन्ना की सदा बुलंद की, तो सबसे पहले इस बेजुबान ने लब्बैक कहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आने वाले तीर अपने जिस्म पर सहे। जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि वो उसके पर बन गए। मैदान करबला में जुलजना ने अपने मालिक से वो वफा की कि खुद वफा को भी इस पर नाज है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। यूं तो मरसिया निगारी की तारीख बहुत पुरानी है। एहसान है करबला के बाद इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसारों की लाजवाल कुर्बानियां हक व बातिल और शर व खैर में होने वाले तसादुम के वाक़यात से मंसूब किया जाता है। मरसिया अरबी कलमा रसा से मंसूब है, जिसके मायने मैयत पर रोना है। अदबी इस्लाम मरसिये से मुराद शायरी की वो सिन्फ है जिसे वाक़े करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान, असहाब व अंसार को पेश आने वाली मुश्किलात व मसाइब बयान किए जाते हैं। 400 साल तारीख पर मुहित उर्दू मरसिये का आगाज हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद दक्कन से हुआ, वहाँ से दिल्ली और फिर लखनऊ मुंतकिल हुआ तो सरजमीन मरसिया निगारी को बहुत रास आई। मीर मिस्कीन, जाफर अली हसरत और मीर ज़मीर ने इसके अदबी खदोखाल को संवारा और नई जहद अता की। मीर अनीस और मीर दबीर ने मरसिये को कमाल उरूज पर पहुंचाया और अंदाज़े बयां और असलूब इजहार की खूबी ही नहीं समोई जज्बात निगारी से भी खूब काम लिया। जदीद मरसिया निगारों में जोश मलिया आबादी की खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने वाक़यात को तसलसल से पेश करने की रिवायात से इन्हिराफ करते हुए इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के किरदार और उनके रुफका की कुर्बानी को अलग अंदाज में पेश किया। लेकिन ये सच है कि बाद में आने वाले मरसिया निगारों की कोशिशों के बावजूद मरसिया आज भी मीर अनीस और दबीर के असर से आज़ाद नहीं हो सका। लफ्ज़ों को आबे हयात पिलाने वाले नामवर दानिश्वर और मुकर्रर ज़िया मुहीउद्दीन ने यौम आशूर पर अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गरीबुल वतनी और फ़ौज अशकिया के जुल्म व सितम को तहतुल लफ्ज़ में कैसे बयान किया, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। अब्बास अली क़िबला अरबाब वफ़ा है, खुर्शीद सिपहरे करम व लुत्फ़ अता है, साबित कदम जादे तस्लीम रजा है, शमशीर खुदा है, खलफ शेर खुदा है,
किस शौक से सदक़े हुआ फर्जंद नबी के, कुर्बान अलमदार हुसैन इब्न अली के। जिस तरह मोहम्मद पे फिदा रहते थे हैदर, इनको भी इसी तरह से था इश्क बिरादर। हजरत को भी प्यारे थे ये बेटों के बराबर, जूं साया न कदमों से जुदा होते थे दम भर। फरमाते थे जानो तन शब्बीर है अब्बास, कुव्वत है मेरी और मेरी शमशीर है अब्बास। जिस दिन से मदीने से चले सैयद अबरार, अब्बास ने खोले न कमर से कभी हथियार। रातों को भी मानंद कमर रहते थे बेदार, और खैमे के चौगिर्द फिरा करते थे होशियार। आशिक थे ज़िबस दोष मोहम्मद के मकी के, इस पर्दे में होते थे तसद्दुक शहीदी के। फरमाते थे ये बारगहे शाह उमम है, क्या रुतबे में कुछ खाना काबा से ये कम है। इस घर का अदब फर्ज है जब तक मेरा दम है, गर्दावरी खैमा नहीं तौफे हरम है। ये अहमद मुख्तार के प्यारों का मकान है, ये अर्श मुअल्ला के सितारों का मकान है। जब मुत्तसिल मारिया पहुंचे शह अबरार, और हुर्रे दिलावर से हुई राह में तकरार। बाग उसने जो पकड़ी थी तो पैदल था अलमदार, एक हाथ में थी शह की रिकाब एक में तलवार। थर्राते थे ये गैस था अब्बास अली को, हजरत के करीब आने न देते थे किसी को। शह कहते थे शफकत से चढ़ो घोड़े पे भाई, पैदल हुए किस वास्ते क्या जी में है आई। कहते थे गवारा नहीं हजरत की जुदाई, इन कदमों से मलता चले आंखों को फिदाई। आका मेरा जब राकिब दोशे नबवी हो, क्यों करना जिलो में मुझे चलने की खुशी हो। मैदान शहादत में जो वारिद हुए सरवर, वहां घाट पे उतरा हुआ था शाम का लश्कर। बरपा हुए रेती पे ख़यामे शह सफदर, पानी न कई दिन हुआ प्यासों को मयस्सर। रोते थे खड़े खैमे के दर पर शह अबरार, और लिपटा था शब्बीर के कदमों से अलमदार। थी अर्ज यही ए खलफे अहमद मुख्तार, है अब तो गुलाम आपसे रुखसत का तलबगार। सब फौज गई जानिब कौसर मेरे मौला, अब देखिए खादिम के भी जौहर मेरे मौला। शह कहते थे मुझ पर है अयां तेरी शजाअत, लेकिन ये न होगा किसी सूरत। अल्लाह सरदार और अलमदार की उल्फत वो रोकते थे, और ये करते थे समाजत। था शह का ये मतलब कि न भाई से जुदा हूं, और उनको तमन्ना थी कि आका पे फिदा हूं। लिपटाते थे छाती से उन्हें सित्ते पैगंबर, ये जोड़े हुए हाथों को झुकते थे कदम पर। फरमाते थे शह हमको रुलाओ न बिरादर, लो जाओ न रोकेंगे, जो मर्जी है सो बेहतर। कासिम की तरह दाग तुम्हारा भी सहेंगे, अब मुंह से बजुज शुक्र खुदा कुछ न कहेंगे। ड्योहरी पे लगे पीटने आकर हरम शाह, गुल सुन के ये बोले पिसरे साद के हमरा। मंगवा तो खबर खैमा शाह शुहदा की, ये गुल है कि हिलती है जमीन करबो बला की। क्या दर्द है इस वक्त के बेताब हैं सरवर, आहू की सदा यहां चली आती है मुकर्रर। रोने में कई बार दमे सर भरा है, और सच न्यूज़ में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
अभी आपको बराह रास्त करबला मुअल्ला लिए चलते हैं, जहां पर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अज़ादारान पुरसा पेश कर रहे हैं। أعظم صابي الديلي ليلة وعاد دم حيلة ومن فجر مدمعة طاحت العباسية بالمشرعة يا أبا الفاضل طاحت العباسية من المشرعة وطاحت عقيدة تغير لونه حين طاح وراسمه شو القمر قطعة وجفوفه وطيفه من النظر لزم ظهره حسين ظهران كسر علوي في الكان العدي هابون حين طاح وراسمه شوم القمر قطعة وجفوفه وطيفه من النظر اللي زم ظهر حسين لن ظهران كسر علوي في الكان العيدة يهابون حسين عنده خبر من جد الرسول النبي الكريم حسين عنده خبر من جد الرسول عن مصاب اليده لاصحاب العقول ينطيحن جسمه تحت جرد الخيول ايام عاشر الامواني ذبحون بالخدمه حسين عنده خبر من جد الرسول عن مصاب اليده لاصحاب العقول ينطيحن جسمه تحت جرد الخيول ايام عاشر الاماني ذبحون علم عين دبدم ماشي
باين خضب عين معين ده حتى ثوب ينسلب عين معين ده بالمخيم يلتهب على أطفال الخايفة يحرقون خادم عين معين دبدم ماشية باين خضب عين معين ده حتى ثوب ينسلب عين معين ده بالمخيم يلتهي على أطفال الخايفة يحرقون لا كان الأذى الحسين بكربلاء لا كان الأذى الحسين بكربلاء لاعته ولاعت ملائكة السماء غربتك تزينب وخدر النساء عقب عينه خايفين يهبون لا كان الأذى الحسين بكربلاء لاعت ملائكة السماء غربتك تزينب وخدر النساء عقب عينه خايفين يهبون حسين يدري مصابه يصبح عالمي ويدري أحرار البشر لتنتمي لا تني فكر بضعف الفاطمي لأرض الأشرار البشر يسبون لأرض الأشرار البشر حسين يدري مصابه يصبح عالمي يدري أحرار البشر يتنتمي لكن يفكر بضعف الفاطمي لأرض الأشرار البشر يسبون يوم عاشر صاح يا رب خذ تضحياتي والمهم عندي رضاك بالسماء وسمعته كل الأملاك تمنى وينزلون وينصرون تمنى وينزلون يوم عاشر صاح يا رب خذ تضحياتي والمهم عندي رضاك بالسماء وسمعته كل الأملاك تمنى وينزلون وينصرون تمنى وينزلون وينصرون يرحل الدهر وتبقى يا حسين يرحل الدهر وتبقى يا حسين انت سر وإلى الله انت
في كل عين سوف يبقى دمعة في كل. سيد سعيد الموسى والطويرخاوي يرحل الدهر وتبقى يا حسين أنت سر وإلى الله انتمى بل خلود صانه وعد السماء. يومك المغضوب من فيض الدماء سوف يبقى دمعة في كل عين. عندها الخطب وإن حل البلاء ليس يثني كربها شوق الملا تركب الموت وتأتي كربلاء تركب الموت وتأتي كربلاء كي تؤدي من وفاها ركعة لثراك المسجد الأقصى انحنى. سيد سعيد الموسوي لثراك المسجد الأقصى انحنى حرم الله لعباس دنا فتنادت فيهما أرواحنا لطواف الحزن بين القبلتين ممنون. سيد سعيد الموسى والطويرخاوي لثراك المسجد الأقصى انحنى حرم الله لعباس دنا فتنادت فيهما أرواحنا لطواف الحزن بين القبلتين لم تزل الطف فينا حرقة من لهيب فيه طاحت خيمة وإلى البيداء فرت صبية وإلى البيداء فرت صبية وهي. علاقے خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی علاقائی یا قومی خبر کے لیے وزٹ کیجیے sach.tv.pk اور دیکھتے رہیے سچ نیوز.